course बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है बिकॉज आर्टिस्ट बीइंग आर्टिस्ट नॉट ओनली मी एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर और मे बी लिसनिंग टू अस वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि सब लोग एक साथ अलग अपने अपने स्टेज पे अपने अपने मंच पे परफॉर्म करें, लोगों को मिले। म्यूज़िक एक बंधन में बंध के रह ही नहीं सकता और बीइंग अ परफॉर्मर वो तो बिल्कुल भी नहीं। और कब तक स्टूडियो के अंदर रहेंगे, वो चीज़ को बाहर लेके आएँ। सो ये मौका आ रहा है। So I would really like to congratulate the team of Showfest and Karl भाई and आनंद भाई कि फाइनली हम सब मिलके वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं in 2022 which is called our show name is Sufi Tronic and very very blessed to be a part of with these people extremely talented जिनको हम look up करते हैं, जिनके म्यूज़िक को हम अपने अंदर समाते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ। तो और आई एम श्योर ये लोग भी थोड़ा बहुत मुझसे सीखते होंगे। मैं सीरियस नोट पे नहीं, मैं भी सीरियस हूँ। तो सीरियसली मैं सलीम को तो बहुत बार बोल चुकी हूँ मैनी इयर्स कि मेरे को एक बारी एक स्टेज पे परफॉर्म करना है और वो मोमेंट आ गया है। अब वेट नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि अभी भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जल्दी जल्दी 22 आ जाए और हम सारे आर्टिस्ट जो कि एक दूसरे से, अच्छी बात ये है कि सभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गहरे दोस्त जैसे हैं। एक बीइंग आर्टिस्ट कभी होता नहीं, ऐसा कम होता है, बट ये जो लाइनअप है सभी एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के काम की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड करते हैं प्यार हम सो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू बी ऑन द शो। थैंक यू। You know, this is such a unique concept to take performances and live performances to the next level. In the US, काफी, you know, there was a little bit of a lag in terms of getting to the right people, getting to the right cities, getting to perform in the right venues. I think Showfest has done something very extraordinary. They've changed the dynamics of taking Bollywood and taking Indian concerts to the next level. The kind of ingenuity that's gone into this and the kind of hard work that's gone into this is really evident. You can see that there is a lot of effort that has gone in to take performances and take, I would say, experiences to the next level. And so for that, I must thank Anand and I must thank Carl to make this whole thing a possibility and a reality. जी बिल्कुल, as Richa ji said that we're always excited to perform in front of an audience, but if the team that you're going with is so lovable and they're all such wonderful human beings and great artists, so it makes our own experience even more beautiful. So if the artist is super happy, he'll be very happy for the audience. They'll be performing, they'll be giving more than their best. So I'm looking forward to traveling with all these wonderful people who are friends. And I think it's first of its kind that there's an app that you can subscribe to. Till now we've been just subscribing to Netflix or getting entertainment at home, but to actually have something you can subscribe to and you can attend concerts. I wish this was in India also. सब अपने password issue दे देते हैं होता है, लेकिन but I think it's a wonderful concept. It's a very unique experience and I'm glad I'm a part of it and a part of this wonderful team. I'm just truly honored to be firstly a part of this lineup of Sufi Tronics. As I was saying earlier कि मैं इतने grown up नहीं मैं बोलना मत कभी। सच नहीं बोलना है, सच नहीं बोलना है। It's going to be an amazing experience. As I was saying that as artists, हम जब म्यूजिक बनाते हैं स्टूडियो में तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोगों के सामने उन गानों को परफॉर्म करें. And the fact that पिछले 2 साल से हम अपने घरों में बंद हैं और ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है शोफेस्ट का to express ourselves as musicians, to be a part of this lovely team, and
give our best at some of the most amazing venues across US. Just very thankful and honored to be here and really looking forward to doing our best at Showcase. Thank you. We'll go with Salman and Akbar. I'll be last. No. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि इतना बड़ा स्टेज है और बहुत ही माशाल्लाह जिनको मैं हमेशा पसंद करता था और करता हूँ उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का एक मौका मिल रहा है। तो बस अब तो बस ये कि बस जल्दी से वो दिन आ जाए जब जिस दिन शो करना है और बस फाड़ना है शो और कुछ नहीं। ये बात ये हुई असली बात। super excited और टाइम फटाफट निकल जाता है। So this is Sufitronics which has been ringing in my head from the time ये जब से announce हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी और excitement है। I've already started work in my head कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, about the sound, about the music, about the songs that need to be done, played, all of that things put together because I've been doing these shows in the US for, like I said, for a long time. But this kind of event is happening for the first time. Thanks to again Anand and Kalji who's put up this entire act together, and it's a fantastic idea. And for me, it's a pleasure. It's मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं such great legends के साथ, such great talent के साथ एक छोटा सा हिस्सा इस शो का हूँ. Thank you. सूफी ये हम सब के दिल के बहुत करीब है। एंड जब हमने इस शो की कल्पना की, जब सोचा कि इस तरह का शो होना चाहिए, तब ये जो आवाज़ें हैं और ये जो साउंड है हमारे साथ, ये आई थिंक हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट है। एंड आई थिंक वी आर नॉट जस्ट हम खुद म्यूज़िक सुनने वालों में बहुत साल से म्यूज़िक करते हैं और हमारे बहुत सारे फिल्म के गाने हैं, उसमें ये सूफ़ी का मतलब ये जो जॉनर है वो हमेशा हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट ये जो आवाज़ है, रिचा के साथ में हमारी इतनी लंबी दोस्ती और म्यूज़िकल जर्नी रही है। राज हमारे साथ में पिछले 10 सालों से हमारे साथ में ही इज़ बीन वर्किंग विद अस, ही इज़ बीन सिंगिंग। अर्शदीप के साथ बहुत ही कमाल की रिलेशनशिप और म्यूज़िकल जर्नी रही है। बहुत सालों पहले हमने पहली बार काम किया था और वी कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर। सलमान हाल ही में हम मिले हैं, हाल ही मतलब 2-3 साल पहले, एंड आई बीन रियली फ्लॉर्ड बाय द वे ही इज़ इसकी आवाज़ मतलब 6th फ्लोर के ऊपर से ही शुरू होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इज़ वो सब हमारे लिए होती है, 6th के बाद इसका। तो इसकी एक बहुत ही यूनिक आवाज़ है, एक यूनिक क्वालिटी है इसकी आवाज़ में, एक पुकार है। एंड अकबर और हमारा मैं क्या कहूँ, हमारा रिश्ता शायद 25 साल से भी ज़्यादा है। सो इट्स बिन फॉर मी दिस इज़ लाइक अ होम कमिंग, इट्स लाइक बहुत ही मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है ये टूर। इतने साल हमने US में परफॉर्म किया है, बट एक हमेशा एक हो रहा है कि वी शुड डू अ बिग शो, एक ऐसा शो करें जो मतलब it should be really massive with a lot of people, a lot of different, or what better to do a show called Sufitronics. Absolutely. With these incredible voices, singers, hearts, जो मतलब गाते हैं। बीच में हम एक रिचा और मैं एक महफिल में मिले थे, and I was just we were playing अली मौला, and रिचा ने जिस तरह से या अली गाया, मतलब वहीं पर मैंने सोचा कि यार I wish काश हम एक शो कर सकते हैं एक साथ में, और वो हो रहा है। तो दैट्स आई थिंक ऊपर वाले ने ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट करके काल और आनंद के थ्रू हमारे सामने रखा है, एंड आई होप दैट हम सूफीट्रॉनिक्स के ज़रिए आप सभी का दिल तक पहुँचा। थैंक यू। यार अभी तक तो रिहर्सल शुरू भी नहीं हुई है। तो याली गा दो। नहीं आप ही गा लो कुछ, आप एक शुरू लाइन करो, आप आप शुरू करो, हम लोग ज्वाइन करते हैं। मेरे जहन में तो अभी सलमान ने गाया तो वही कुछ भी गा लो। सिंगर्स होते हैं तो नो, आपका ही दिख गाना। जाता है। अच्छा आपका कोई फिर माहौल वो सूफी ट्रॉनिक वाला नहीं है। हाँ तो चलिए। तो लेट मी तो बस also fine.
Whatever you माहौल नहीं बनेगा जो मर्जी आप ही गाओ ऋचा जी, that's it. कॉल इज योर। चलो मैं या प्लीज। हम लोग ने सब कुछ बोल दिया, अभी ऋचा उनको से कार का। सर कहाँ? ये हमारी बहन है और बोलती सारा है, बताओ। चेयर आ जाए फिर गाते हैं। नहीं Suggest अच्छा, नहीं आता, आगे, you know. thank you, thank you. ओ कमॉन इश्क में करे कौन सा? इश्क में करे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इश्क में करे लव इज तू ही दीवानगी, तू ही आवारगी, रब्बा मेरे तू ही मेरी जिंदगी। तौबा तौबा इश्क में करे तौबा तौबा इश्क में करे। हो गया, बाकी सूफी ट्रॉनिक में होगा। Thank you everybody. Any questions? Let's wait for let's get the other lot, which is Shan and I think they do separate, no? ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कम ना अरे just taking photos. ऐसे नहीं बाबू, ऐसे ऐसे। How many years is this course? 3 years? 3 years. Please. Salim is हाँ जी। इनके चाच हाँ माइक की जरूरत नहीं यार यहाँ पे। सिर्फ इन टिपिकल प्रेस वाले जैसे पूछते उस स्टाइल में। हाँ हाँ उनके नहीं आपके बाजू में है वो मायर है। मुझे पता है शान, मोहित और केके आप तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कमाल के कलाकार, पत्नी बहुत अच्छे खेलने के। पर कुछ तो मतलब हो सकता है ना ऐसा, थोड़ी अनबन तो हो सकती है, कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा। मतलब कुछ आपने प्लान मैं स्टार्ट कर लूँगा। आगे पीछे बीच में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बहुत मिसिंग और सीन से कहाँ हो कहाँ है? मैं वैसे यही हूँ बट थोड़ा मिसिंग हूँ। तो पिछले 10 साल से कोविड चल रहा है आपकी जिंदगी में। फीमेल सिंगर की चाहिए ओपन करने के लिए तो मैं भी आ जाऊँ। तू तो वैसे ही आ जाना यार, तू तो है ही मेरे से पहले वहाँ पर, रुक जा। मस्ती करेंगे पूरा। अच्छा बाबा जी, ये सवाल आपके लिए। हाँ जी एक सवाल आपके लिए बाबा जी। आप मतलब आपके गाने इतने कमाल के, आपने सोचा है कि कुछ जो आपके गाने आप परफॉर्म करेंगे साथ में शान के कुछ लाइनें डिवाइड होंगी, या ऐसा भी आपने सोचा कि शायद मैं शान के गाने गाऊं, शायद मैं के गाने गाऊं और वहाँ पे स्वैप कर ले हम सॉन्ग? ये दोनों सिनारियो हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम तीनों हमारे रूट सेम हैं। हम लोग वो अपना गाना गाना इंडी पॉप से शुरू हुए, और जब मैंने सिल्क रूट के साथ जब बैंड बनाया था और डूबा डूबा गाना आया था और मैंने वो पहाड़ों में कंपोज किया था, तो उस टाइम पे ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं आज यहाँ बैठा हूँगा 22 साल के बाद, 97-98 में 22-23 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम ये इमेजिन करना मुश्किल था कि जर्नी कहाँ तक जाएगा। उस टाइम तो यही था कि ये गाना बनाया हुआ है और गिटार बजाते हैं, इसमें हार्मनी करते हैं, इसमें तू रिकॉर्डर बजा दे और ये रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर ये वीडियो बन गया और चलो जी, ये तो बड़ा ड्रीम कम ट्रू हो गया। मतलब एक म्यूजिशियन के लिए एल्बम अपना संगीत बाहर आ जाए, वो ड्रीम कम ट्रू है। तो और हम लोग शान भी वहीं से आए, इन्होंने अपने गाने निकाले, के भी शुरू के गाने जो इनके एल्बम्स के गाने थे, और वहाँ से हाँ फिल्मों में आए। हाँ, और तो मैं ये इनसे अभी हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि हम लोग एक तरह से पायनियर्स थे, हम लोग नॉन फिल्म इंडी पॉप मूवमेंट के, जिसमें और भी कुछ बैंड्स और म्यूजिशियन थे इंडिया के, पर हम तीन जो थे उसका बड़ा एक हिस्सा थे। और वो शुरुआत हमने देखा है, मतलब वो, और उस टाइम वो ग्लोरी डेज थे, MTV चैनल भी है ना, दे वर लाइक रियली ग्लोरी डेज। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे जो म्यूजिशियंस हैं इंडिया में, वो उस मूवमेंट से बहुत इंस्पायर हुए हैं। 90s के हाँ, आज भी लोग उसकी बात करते हैं, उन गीतों की बात करते हैं। Right. Babaji has definitely done it. Rockstar himself. It's in the movie. And आपका sound भी मैं जानता हूँ. So is there going to be a rock kind of a genre
सेगमेंट रहने वाला है क्या? बिकॉज आपके गाने इतने Yes. To be honest, right now we were just talking backstage. हम तीनों बैठ के बात कर रहे थे. So we will kind of get together and see what we can do together as well. क्योंकि अकेले तो हम लोग अपना अपना गाना करते ही हैं. अपना स्टाइल सबका है ही. But how we amalgamate and put it together is something will be first time experience for us also. हमें भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि it's going to be completely new. And like you said, rock, yeah. मैं तो यार स्कूल से कॉलेज से मेरे अपने बैंड होते थे तो मैं रॉक ही करता था. I used to have lot of rock bands performing. And जब मुझे मौका मिला कि हिंदी फिल्मों में ऐसे गाने जब बने 2000 में with Pritam, I started with a lot of, you know, so it was like up my alley and I kind of felt wow, this is great, you know, this is just what I wanted to do. So for me, I think all of us actually we got into that right space, है ना? Yeah. Because all three of us kind of started at the same time. जो एक You know, the new sound, I think. new We sound, were the new sound. So I think that now after so many years getting together, probably we might just get to some other new sound. I don't know. I don't know about sound, but definitely Shan has some great steps for the show. This next question is for Shan. Is Shan going to like do a little choreography for for the show? I mean, मतलब See, very honestly, the three of us, एक चीज और भी हम तीनों में ही common है कि we are very casual, we are very easy और कोई हमारे में इस तरह की कोई एक ईगो वाली चीज Attitude problem नहीं है. attitude वाली चीज नहीं है. तो यही है कि उसकी एक डाउनफॉल ये होती है कि वी गेट वेरी कैजुअल इवन फॉर द परफॉर्मेंस. कहीं ना कहीं यार देख लेंगे, यार कर लेंगे, यार हो जाएगा करके. केकिन वी डन व्हाट 16 shows including India. In India, Dubai. 16 shows किए हैं. Rehearsals कोई सीधा जाते थे, you know. But there's a lot of fun in that. But that chemistry, that Yeah, fun, because- वहाँ जाके करें. तो उसमें भी हम लोग डांस वांस भी काफी किए. अगर आप देखो, हाँ, एक बार वो कौन सा कुर्बानी गाने पे दोनों पैर लॉक करके पूरा 360 गोल घूमे. So I think it's basically, since there's a lot of positive energy coming through all three and that camaraderie. It's basically that a lot of works. fun on stage. Yeah. But having said that, since we just saw the kind of venues, we saw the kind of we're also competing with, in a way, with some very, very, very big shows that are going to happen through the year. So I'm looking at a minimum at least 8 to 10 days of proper rehearsals with the band. हम तीनों की अपनी bands हैं, but we have to create a show which is going to have 20 musicians. So with the rock vibe, we'll have to add more orchestral sound so that it sounds really big and strong. Yeah. So we want to make a really, really big, strong impression. Not just कि हाँ, हमारे गाने तो कर रही गाने है. के बाद इतने सारे गाने हैं, लोग आएंगे, सुनेंगे, खुश हो जाएंगे. कुछ ऐसा करेंगे जो कभी नहीं किया. Something new. Something special. Yeah, for sure. For sure. In fact, I would say something. जी. जब से मेरी बात हुई ना कि कंफर्म हो गया है, हम तीन हैं. Yeah. So I've been thinking at night, what should we do, kind of, to make it, like you said, something new. Yes. So the idea is like, बाद में बात करेंगे. तो बैठेंगे आराम से किसी बच्चे में. हाँ. Exactly, मैं भी सोच रहा हूँ कितना लंबा शो होगा. मैं 6-8 घंटे का होगा तो फिर भी ठीक है. नहीं. लेकिन एक आइडिया मुझे अभी सूझ रहा है. ये क्या बोलना? Publicly एक कमाल का एक there's this amazing, मतलब हरफन वाला म्यूजिशियन है. क्यों ना हम उनके पास जाएं और कहें कि कोई ऐसा गाना बनाओ कि हम तीनों, जैसे कि एक इंटरनेशनली गाना बना था ना, All for One, One for All. Yeah. फेमस गाना बना था which had Rod Stewart, Sting and Bryan Adams. Yeah. ना, तो ऐसा एक बंदा है हमारे पास. मेरे नजर में एक है, मेरा बहुत पुराना, कुछ बहुत खास सालों है, पुराना कुछ दोस्त खास है ना वो? हाँ, वो कुछ खास है. सलीम जो खास है, मुझे भी कुछ नजर पास आ रहा है. उसी से हम करवाएंगे एक गाना. सलीम, मुझे भी नजर आ रहा है. प्रेस है, you got to make a song for the three of us. ठीक है ना? we'll have a lot of fun. I can say that. Har fun, you said. हर फन. हाँ नहीं, हम तीनों मिलके साथ में 4 हम. हाँ सलीम. Done, yeah. It's a treat for us. Done. नहीं, it's a great opportunity ये जो मिल रही है. For us to और get उसका together. हम जितना, To be called. नाम क्या कर sorry, मुझे नाम नहीं. वो तो उनको मालूम होगा, शायद हमने तो सोचा नहीं. प्लानिंग चल रही है. हम तो खाली खुश हैं कि कर रहे हैं. मुझे तो यार एक ही नाम याद आ रहा है. यारो बन सकता है. Why not? यारो बन सकता चल, है. हाँ, तीनों हैं. रॉक स्टार्स बन सकते हैं. We'll think of something. Stars. हाँ, बन सकता है. Last of the rock stars. Who knows? Oh, yeah, that's also good. वो बन सकता है. यारों में दिल की. यारों के दिल की बात है. हाँ. क्या जो ऑडियंस की जो हाँ. वो क्या है जो फ्रेंड्स है. Friends हाँ, come हाँ. together. चलो. Right. चलो देख लेते हैं. बाकी यारों को कुछ कहना होगा तो प्लीज पूछ लो, मैं यही तू जा. प्रेस के सवालों के पूछ लो. नहीं यार, अभी don't want to sing अभी. यारो चलो. हो जाए. तू शुरू कर. यारों दोस्ती
बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार. Thank you, thank you, thank you. मसक्कले. उड़ मटक 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 कली. बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा. If you sing his song and he sings KK's song in that film. Definitely, we already did a little bit of that. आँखों में सपने घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए. तेरे को गाना नहीं दूंगा. Backing, backing. Give me the mic and I'm not gonna give you the mic. This is my song. It is true. It is true. All across. You know, guys, really honestly, I want to see a concert with Sting and Peter Gabriel. Yeah. And they did that for a long time. ये इसका गाना गा रहा है, वो उसका गाना है. He's singing English man, and, you know, this guy singing. Wow. So we should do that. At least a couple of things we should Luckily, our genre, our styles are not that. We're gonna do that, bro. We're all Definitely rock gonna and romance. rock So I and think we romance. can Yeah, easily we pull that can off. easily. Bilkul, आराम से. bilkul. We'll decide. Some song that you like of mine, some song I like of yours. You know, whatever. आप लोग decide कर लेंगे ना. बिल्कुल. जो पसंद है वो कर लेंगे. बिल्कुल. अब सर आप यहाँ बैठे हैं चुपचाप, ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो कहिए. हाँ जी, हो गया, सिंपल. Excitement तो आपने देख ही लिया अभी. एक्चुअली हम सिर्फ एक बात से डिसअपॉइंटेड है कि हमारा जो स्केड्यूल्ड टूर है ना वो अक्टूबर में 2022, तो ये वक्त हम कैसे बिताएंगे तब तक. हाँ. लेकिन बहुत दूर है, एक साल है पूरा. हाँ, एक पूरा साल बाकी है. पर शान इसमें एक एडवांटेज भी है, हम लोग बैठ के कुछ और भी कर सकते हैं साथ साथ में. बिल्कुल बिल्कुल. और इनफैक्ट तब तक वही प्लान है कि कुछ ऐसे गाने करें साथ में, क्योंकि इतने सालों से हम लोग इंडिविजुअली और करते हैं, देखिए और मेरे तो बहुत हाँ, सारे बिल्कुल, duets हैं, बिल्कुल करना लेकिन चाहिए. तीनों के कॉम्बिनेशन में कोई गाना नहीं है, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन में एक कुछ करते गाने हैं. जरूर करेंगे. Yeah, we should. एक तो करेंगे इस ईयर. और ये जैसे केके और शान है, इन दोनों की जो वॉइसेस हैं डिस्टिंक्ट हैं. तो जैसे बहुत सारे आजकल सिंगर्स हैं जिनका आवाज़ का पता नहीं लगता कौन गा रहा है, पूछना पड़ता है. लेकिन शान गाते हैं या केक गाते हैं ना तो 1 किलोमीटर से पता लग जाता है कौन गा रहा है. बाबा जी तो आपकी वो- आवाज़ बिल्कुल. ऐसी बात. हाँ हाँ चलो बिल्कुल. मेरी भी है. हाँ हाँ प्लीज योर्स आल्सो. ओके. पर लेकिन ऐसी डिस्टिंक्ट अगर आवाज़ें हों और वो इकट्ठा कोलैबोरेट करते हैं तो उसका बहुत एक वो एडवांटेज रहता है. ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है. Yes. एंड दे कैन रिकग्नाइज द वॉइसेस, लेकिन वॉइसेस ब्लेंड भी कर रही हैं आपस में, हार्मोनाइज कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं म्यूजिकली, तो उसका एक असर होता है. तो वो भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं. और बहुत एक्साइटेड है एक्चुअली मैं, बिकॉज पहली बार इस तरह का इंतज़ाम जो होता है नहीं, बिल्कुल. जो ये लोग कर रहे इस हैं, तह जो पे. शो फेस्ट में हो रहा है, और जितना प्रोफेशनलिज्म है, जितना उसको उन्होंने उठाया है लेवल को, तो बड़ा वेन्यू, बड़ा साउंड, ऑडियंस के लिए बहुत चीज़ें हैं. तो आई थिंक इट्स अ रियली एक्साइटिंग थिंग. और ये हो सकता है हम लोग उस शुरुआत का हिस्सा बन रहे हैं जो अब इसी लेवल पे और इससे ऊपर चढ़ेगा. और तो वो हमारे लिए भी, हमारे के बाद जो नई जनरेशन है उनको वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उससे वो नीचे नहीं जाएगा कभी. बिल्कुल. लोग बोलेंगे यार ऐसा ही होता, इतने सालों से हो रहा है, अब क्यों डाउन जाएगा. हाँ. जो डाउन करेगा उसके साथ कोई काम नहीं करेगा. तो वो एक लेवल बढ़ गया है. तो एक आर्टिस्ट जो होता है उसका क्रिएटिविटी, उसको वो कंफर्ट भी चाहिए होता है. तो जैसे अभी स्टेज पे बोल भी रहे थे कि कई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है कई बार विदेश में. कई बार हुआ अच्छा है. विदेश में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है तो आप अपने देश में नहीं होते हैं, तो वहाँ से 18 घंटा का फ्लाइट होता है, तो आदमी को टेंशन हो जाती है. अपने देश में तो अगर काम खराब है तो आदमी 2 हाँ, बिल्कुल, मिनट निकल में रह गया. जाता है. अच्छा वहाँ बातचीत करने को भी सब होते हैं हिंदुस्तान में. बाहर विदेश में अगर आदमी थोड़ा प्रॉब्लम में फंसता है तो आदमी को लगता है मैं घर जाऊँगा, मैं अपने में फंस गया. तो अब अगर वो कंफर्ट अगर मिलेगा आर्टिस्ट को और ऑडियंस को, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ओवरऑल शोज के भी मतलब शोज में भी फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. यू आर इन हाँ, गुड स्पेस मेंटली. यू नो परफॉर्मिंग फॉर अ बिग ऑडियंस, तो तुम जाते हो वहाँ पर और तुम्हें लगता है कि साउंड नहीं ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, या कुछ और आज ये नहीं आया, माइक ठीक नहीं बहुत आया. stress, बहुत सो दैट्स अ स्ट्रेस. एंड आई बिलीव दैट एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू परफॉर्मिंग, आप स्टेज पे हो, आपको स्ट्रेस से सबसे दूर रहना है. स्ट्रेस आसपास होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यू परफॉर्मिंग फॉर अ बिग ऑडियंस एंड आप एंजॉय करना चाहते हो. आप ये सोच रहे हो यार यहाँ मेरे को साउंड नहीं आ रही बराबर. अच्छा उसके बाद फ्लाइट की टिकट होगी बुक और वो कैंसिल होगी लास्ट मिनट में, अब आपको लास्ट मिनट पहुँच के सीधा स्टेज पे घुसना पड़ेगा. यू नो इट्स नॉट ईजी टू परफॉर्म अब्रॉड. सो दीज गाइज
I would say Carl and Anand have really put their head together over the last couple of years, and have kind of made an effort to make our lives easy too. Which और is मुझे great. ये चीज़ बहुत इनकी कमेंडेबल लग रही है कि देखो शान के में हमको 22-23 साल हो चुके हैं संगीत प्रोफेशनली गाते हुए। गा तो कब से रहे हैं लेकिन प्रोफेशनली गा रहे हैं 20-25 साल हो चुके हैं, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग आते हैं अच्छा गाते हैं लगता लेकिन नहीं है वो ना? चले जाते हैं फिर। और तो इतने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमसे भी सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने भी इतने टाइम से किया, तो एक वो आर्टिस्ट को जब उसका ड्यू मिलता है ना और उसको रिस्पेक्ट मिलता है, उसको वो आराम मिलता है, तो उसका सही बात है। परफॉर्मेंस जो होता है उसका लेवल अलग जाता है फिर। तो उसके लिए आई एम रियली हैप्पी कि ये हो रहा है। totally. ऑल थ्री ऑफ अस आर रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। Yeah, really want to thank Kal Kalra ji, Yeah, इनकी yeah. इनिशिएटिव थी, कि इतना अच्छा उन्होंने ये सोचा हम सब के लिए। Thank you, thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा प्रेस वाले बाहर है, वो भी मुझे लग रहा है कि बाबा जी का जी I can speak for the three of us. I don't know what is in the future for Bollywood in that sense, but एक हम तीनों का जो जिस वक्त में हम बॉलीवुड के लिए गाने गा रहे थे, तो तब एक बॉलीवुड के गानों की भी एक कहीं ना कहीं एक लार्जर देन लाइफ एक फील थी, क्योंकि अभी जिस तरह से फिल्में और रियलिटी बेस्ड फिल्में हो रही है, गाने ज़्यादातर बैकग्राउंड गाने हो रहे हैं, तो उस तरह से वो गाने की जो एक Larger than life larger है। than life चीज़ थी कि वो कम हो गई। वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं कम हुई है। Having said that, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी इंडी पॉप या अपने खुद के गाने, कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूँ कि वो जो ओरिजिनल गानों का जो वक्त आया है वो फिर से आ गया है। तो चाहे फिल्म के हो ना हो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे अपने गाने आप जरूर बहुत जरूर सारे सुनना। सुनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। 100%. जी जी थैंक यू जी। Thank you, thank you, thank you. चलिए जी। Silence, please, silence. शो फेस्ट के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और ये स्पेशली जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, जो लोग शो देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि एक ही मेंबरशिप में उनको 5 शोज़ और 2 और शोज़ 7 शोज़ मिलेंगे देखने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके जो पैसे हैं वो सेफ हैं, नहीं तो पिछले सालों से यही हो रहा है कि शो अनाउंस होते हैं और उसके बाद शो कैंसिल हो जाते हैं। जिन लोगों ने टिकटें खरीदी होती उनको बहुत एक तो दिल दुखी होता है कि शो नहीं हुआ, और टिकट कैंसिल हो गई, उसके बाद टिकट उनको ये मालूम ही नहीं कि पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा है कि आपको अपनी मर्ज़ी की सीट मिलेगी, आपको अपनी मर्ज़ी के शो मिलेंगे। आप ये अपनी टिकट को वापस किसी को सेल करना चाहते हैं, सेल भी करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत कमाल कंसेप्ट है और ये बहुत कामयाब होगा, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ काल साहब को, आनंद दावड़ा जी को और शो फेस्ट को। रब रखा। थैंक यू सो मच। ये है सेंटर। I am so excited because it's so nice to meet people, you know, like we've really, underappreciate the ability to just be with people, and the energy of people is something that you will never get a performance, the energy of a live performance, you're never going to get by watching it
on your iPad or whatever it is. So I'm glad that I'm doing this. I'm very excited for the show. It's my first show. It's my first tour. So very excited to be doing it with Showfest. Yeah. It's on, right? Yeah. Yeah. You know, it's a very mammoth task to put something like this together, but I think their pros are doing what they're doing. Then they're here, they're right here. Thank you, Pooja. So it's not easy doing what they're doing. It's not easy to coordinate this, which is why we are doing it so much in advance. I think it's something that they've been doing and they're good at it, which is why they're doing it. I think they've been successful. So I'm excited. Yeah. Well, I'm just gonna have to manage it, right? But it's fine. I think when you do 4 films at a time, you get that ability, and women are good at multitasking. So I think, yeah, and I'll manage it. I think, dancing is something that comes very naturally to me. I really enjoy it. I've learned 10 years of Bharatnatyam. So it's something that I genuinely enjoy doing. So I think it's gonna be more like the fun part in my busy day. Yeah. हाँ जी. मुझे किस अंदाज में देखने वाले हैं? ये मैं नेक्स्ट ईयर आंसर करने वाली हूँ अभी, बट आई थिंक ये जो है मेरा पहला शो है, सो आई मीन आई एम गोना पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड. मैं गई हूँ अमेरिका, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के लिए गई हूँ, या फिर आई नेवर परफॉर्म्ड ओवर देयर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई डू नो दैट कि मेरे फैंस हैं उधर, बिकॉज आई बहुत है, और मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा देखती हूँ. तो आई एम सो ग्लैड कि शोफेस्ट is organizing this, because I feel like it's one step closer to your people, your fans, or let's hope कि Bollywood is, like I said, all over US and people come watch it. I feel कि उनको लगेगा कि उनका it's like home, it's home away from home. I hope we make them feel that. अभी आपने बोल दिया तो मैं कुछ करूंगी अभी. Now that you said it, maybe the next show we can do something like that. Yeah, you never know, like yeah, exactly. So we'll keep it in mind, but I feel कि हमारा जो ये Bollywood जो है, it kind of merges in Indian cinema rather. We merge music with our films, and वहाँ पे तो ऐसे रहता है कि एक फिल्म म्यूजिकल रहता है उनका, लेकिन यहाँ पे वी आर ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांस. बॉलीवुड, वेदर इट्स I mean any industry, Tollywood or whatever it is. I mean Buttabomma has crossed boundaries and crossed regions and languages. So I think, yeah, so I'm excited for that. Maybe अगर आपने बोल दिया तो I'll definitely consider it. Yes, release होने वाली है October 15th, Dussehra. So it's a very nice, fun film, and you're gonna see me in a very, very new light. The girl's character is like, which is why I did the film. I'm very excited for it. Thank you. Thank you. बंद हो गई है, अटक गई है मतलब. I'm hearing this for the first time. मैंने भी नहीं सुना है ये. Very much on flows है. Yeah, and it's like it's on. अभी मतलब कोरोना था यार, अभी क्या करें हम, like nobody was shooting. I don't think कि एक ही फिल्म के बारे में it's on, very much on. So what is the status of your current film, Kabir? It's now called Bhaijan. We're gonna start shooting soon, but I'm just very excited with Circus, with Bhaijan. I think it's a good lineup in Hindi. Thank you.
थैंक यू सो मच. उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई थॉट लाइक यू नो let's be formal but let's be sexy at the same time. So I think I managed to get the blend of both.